Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Hindi ebook before it's gone. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are 3 proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors. Plus, tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! एक आदमी अपनी कंपनी की सेल्स संपादन के बारे में मीटिंग में प्रस्तुति कर रहा है। वह कौन से 2 आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दिए गए कागज को देखिए।
बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है। दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है। अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए। इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है। हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज़्यादा होगी। अब दाएं की चार्ट को देखिए। दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफ़ी सफल रहे। अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई। हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे। वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? एक आदमी अपनी कंपनी की सेल्स संपादन के बारे में मीटिंग में प्रस्तुति कर रहा है। वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दिए गए कागज को देखिए। बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है। दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है। अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए। इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है। हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज़्यादा होगी। अब दाएं की चार्ट को देखिए। दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफ़ी सफल रहे। अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई। हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे। एक आदमी एक खेल क्लब में भर्ती हो रहा है और वहाँ के नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग-अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं। नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन, किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है और हम सिर्फ जिमखाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ़ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है, शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूँगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूँगा। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? एक आदमी एक खेल क्लब में भर्ती हो रहा है और वहाँ के नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग-अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं।
नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है, और हम सिर्फ जिम खाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ़ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है, शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूँगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूँगा। एक महिला अपनी कंपनी के विवरण पुस्तिका और कागज बनाने वाले प्रिंटिंग कंपनी के एक कार्यकर्ता से बात कर रही है। विवरण पुस्तिका की पहली डिजाइन मसौदा की समय सीमा कब है? हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है, और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद। हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे? सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए, हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिज़ाइन देना पसंद करेंगे, ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिज़ाइन चुन सकें। फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिज़ाइन बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफ़ी होगा एक डिज़ाइन चुनकर आखिरी डिज़ाइन तक पहुंचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिज़ाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? एक महिला अपनी कंपनी के विवरण पुस्तिका और कागज बनाने वाले प्रिंटिंग कंपनी के एक कार्यकर्ता से बात कर रही है। विवरण पुस्तिका की पहली डिज़ाइन मसौदा की समय सीमा कब है? हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है, और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद। हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे? सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए, हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिज़ाइन देना पसंद करेंगे, ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिज़ाइन चुन सकें। फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिज़ाइन बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफ़ी होगा एक डिज़ाइन चुनकर आखिरी डिज़ाइन तक पहुंचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिज़ाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। एक महिला फ़ोन पर एक नाटक के टिकटें बुक कर रही है। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्लेहाउस
मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं। आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं हैं। अगर आपको ऐतराज़ नहीं है, तो आपको 2 सीटें हम अलग-अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट हैं? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के 3 सीट बाद एक और खाली सीट है। बाएं तरफ। अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है। यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो पहले बताया था वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? एक महिला फोन पर एक नाटक के टिकटें बुक कर रही है। वह कौन से 2 सीट बुक करती है? हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्ले हाउस। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं। आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं हैं। अगर आपको ऐतराज़ नहीं है, तो आपको 2 सीटें हम अलग-अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट हैं? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के 3 सीट बाद एक और खाली सीट है। बाएं तरफ। अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है। यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो पहले बताया था वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। एक आदमी और औरत अपने काम के अगले दिन की प्रदर्शन की योजना को लेकर बात कर रहे हैं। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है। क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओह, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो, तो ठीक करने का समय नहीं होगा। तो आज ही देख लेना, यही सबसे जरूरी है। अच्छा, और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है। सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है, मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? एक आदमी और औरत अपने काम के अगले दिन की प्रदर्शन की योजना को लेकर बात कर रहे हैं। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है। क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओह, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो, तो ठीक करने का समय नहीं होगा।
तो आज ही देख लेना, यही सबसे जरूरी है। अच्छा, और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है। सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है, मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. Hello everyone, welcome back to HindiPod101.com, the easiest, smartest and quickest way to learn Hindi online. My name is Anuj Khurana and in today's topic we are going to learn how to pronounce the 10 hardest words in Hindi. Yes, so today I'm going to tell you how you can pronounce these hard words, and don't worry, I'm going to make it easier for you. Sundar, beautiful. So let's begin with our first word, which is Sundar. Sundar, which means beautiful. नेहा एक बहुत ही सुंदर लड़की है. नेहा is a very beautiful girl. भगवान, God. Our next word is Bhagwan. Bhagwan. Bhagwan, which means God. मुझे भगवान में बहुत भरोसा है. I truly believe in God. Bhagwan, which means God. Rajniti, politics. Rajniti, which means politics. मेरा राजनीति में कोई भी रुझान नहीं है. I have no interest in politics. Rajniti, Rajniti. Bhrashtachar, corruption. Okay, so the next word is quite interesting. It is Bhrashtachar. Okay, I'll divide it down for you. It's Bhrashtachar. Bhrashtachar. Bhrashtachar, which means corruption. सब लोग चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए. Everyone wants the corruption should end from the country. Bhrashtachar. Samjhauta, agreement. Samjhauta, samjhauta, which means an agreement. क्या आप समझौता करना चाहेंगे? Would you like to make an agreement? Samjhauta, which means an agreement. Mantralaya, ministry. Okay, so another word is mantralaya. Mantralaya. Mantralaya, which means ministry. मंत्रालय के पास आज बहुत भीड़ है. It is very crowded near the ministry. I'll repeat this word for you. It is mantralaya. Mantralaya, which means ministry. Videsh, foreign. Our next word is Videsh. Videsh. Videsh, which means foreign. विदेश जाने के लिए पासपोर्ट होना जरूरी है. It is amended to have a passport to go to a foreign country. Rajdhani, capital. Next word is Rajdhani. Rajdhani. Rajdhani, which means capital. भारत की राजधानी दिल्ली है. Delhi is the capital of India. Swatantrata, independence. So another word here is Swatantrata. Swatantrata. Okay, don't worry, I'll divide it down for you. Swatantrata. Swatantrata. Swatantrata, which means independence. भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. India celebrates
It's Independence Day on 15th of August. Swatantrata. Swatantrata. पढ़ाई, studies. Alright, so coming towards the end of this lesson, our last word is padhai. Padhai, which means studies. Padhai, padhai, studies. रीमा पढ़ाई में बहुत अच्छी है. रीमा is very good at studies. पढ़ाई, पढ़ाई, studies. Alright everyone, so that's the end of this lesson. I know these words were quite tough, but I hope I made it a bit easier for you, and I'm sure you're gonna learn them quickly and very easily. If you all liked our video, please click on the like button and please share this video with all of your friends, and please subscribe to our channel, which is hindipod101.com. You can also visit to our website, which is www.hindipod101.com. I will come back with few more Hindi lessons. Till then, stay tuned. Goodbye. Take care. एक आदमी और एक औरत एक होटल चुन रहे हैं। वे कौन सा होटल चुनेंगे? हमें अपने अगले महीने के ट्रिप के लिए होटल तय करना है। ठीक है, चलो इंटरनेट पे चेक करते हैं। ओशन होटल बीच के पास है, $120 में प्रति रात, और उसमें बुफे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पाइन होटल कैसा रहेगा? इसमें $80 प्रति रात है। मैं रहने पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन पाइन होटल बीच से और शहर के केंद्र से दूर है, और इसमें लिखा है कि वाईफाई के लिए भुगतान करना पड़ता है। सनराइज होटल के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ आमतौर पे $140 प्रति रात लागत आती है, लेकिन अभी वहाँ कैंपेन चल रहा है, तो हम $90 में एक रात के लिए रुक सकते हैं। यह बीच और शहर के मध्य में है। इसके अलावा यहाँ मुफ्त वाईफाई भी है। काफ़ी अच्छा है। ओह रुको, इसमें लिखा है यह सौदा केवल अगले हफ्ते के लिए ही है। ओह, वह मैंने नहीं देखा। तो इस रॉयल होटल के बारे में क्या ख्याल है? ये शहर के बीच में है और इसमें $100 प्रति रात की लागत है। कमरा इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ मुफ्त वाईफाई है। ठीक है, चलो यह होटल बुक करते हैं। ओह, यह पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। उफ़, फिर मुझे लगता है पहले वाला ही सबसे अच्छा है। क्या वह भरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। वे कौन सा होटल चुनेंगे? एक आदमी और एक औरत एक होटल चुन रहे हैं। वे कौन सा होटल चुनेंगे? हमें अपने अगले महीने के ट्रिप के लिए होटल तय करना है। ठीक है, चलो इंटरनेट पे चेक करते हैं। ओशन होटल बीच के पास है, $120 में प्रति रात, और उसमें बुफे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पाइन होटल कैसा रहेगा? इसमें $80 प्रति रात है। मैं रहने पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन पाइन होटल बीच से और शहर के केंद्र से दूर है, और इसमें लिखा है कि वाईफाई के लिए भुगतान करना पड़ता है। सनराइज होटल के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ आमतौर पे $140 प्रति रात लागत आती है, लेकिन अभी वहाँ कैंपेन चल रहा है, तो हम $90 में एक रात के लिए रुक सकते हैं। यह बीच और शहर के मध्य में है। इसके अलावा यहाँ मुफ्त वाईफाई भी है। काफ़ी अच्छा है। ओह रुको, इसमें लिखा है यह सौदा केवल अगले हफ्ते के लिए ही है। ओह, वह मैंने नहीं देखा। तो इस रॉयल होटल के बारे में क्या ख्याल है? ये शहर के बीच में है और इसमें $100 प्रति रात की लागत है। कमरा इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ मुफ्त वाईफाई है। ठीक है, चलो यह होटल बुक करते हैं। ओह, यह पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। उफ़, फिर मुझे लगता है पहले वाला ही सबसे अच्छा है। क्या वह भरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। एक आदमी और एक औरत मीटिंग रूम के नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे?
चलो कल की मीटिंग के लिए टेबलों की व्यवस्था करें। ठीक है। क्या हमें सभी टेबलों को कमरे के बीच में रखना चाहिए ताकि सभी आसपास बैठे और एक दूसरे को देख पाएं? नहीं, पहले एक समूह सत्र होगा, तो टेबलों को 4 वर्गों में अलग कर देते हैं। 4 लोग एक समूह में बैठेंगे। ठीक है, और मैं हर एक टेबल पे नोटपैड और पेन रख दूंगी। धन्यवाद। और हम सत्र शुरू करने से पहले एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक संक्षिप्त विवरण देंगे, इसलिए हमें एक प्रोजेक्टर की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा हम एक सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? क्या अगर मैं सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के करीब रख दूं तो ठीक रहेगा? सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के विपरीत लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इसे कमरे के पीछे रख देते हैं। ठीक है। और मीटिंग के बाद सारा सामान वापस लाना मत भूलना। 2-2 टेबलों की 4 पंक्तियां बनाओ। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे? एक आदमी और एक औरत मीटिंग रूम के नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे? चलो कल की मीटिंग के लिए टेबलों की व्यवस्था करें। ठीक है। क्या हमें सभी टेबलों को कमरे के बीच में रखना चाहिए ताकि सभी आसपास बैठे और एक दूसरे को देख पाएं? नहीं, पहले एक समूह सत्र होगा, तो टेबलों को 4 वर्गों में अलग कर देते हैं। 4 लोग एक समूह में बैठेंगे। ठीक है, और मैं हर एक टेबल पे नोटपैड और पेन रख दूंगी। धन्यवाद। और हम सत्र शुरू करने से पहले एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक संक्षिप्त विवरण देंगे, इसलिए हमें एक प्रोजेक्टर की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा हम एक सफ़ेद बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? क्या अगर मैं सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के करीब रख दूं तो ठीक रहेगा? सफ़ेद बोर्ड को स्क्रीन के विपरीत लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इसे कमरे के पीछे रख देते हैं। ठीक है। और मीटिंग के बाद सारा सामान वापस लाना मत भूलना। 2-2 टेबलों की 4 पंक्तियां बनाओ। Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.